So brace yourself for the Sansad storm. After a week-long washout, the parliament is all set for a fiery debate, not just on the Pahalgam terror attack, but also on India's strongest response yet to Pakistan's state-sponsored radical Islamist terror, Operation Sindoor. Here, the ruling NDA and the opposition India alliance, they've locked horns over two issues framed around national security and India's foreign policy. So there's a 16-hour debate that's scheduled in Lok Sabha starting today. And the discussion will be initiated by Defence Minister Rajnath Singh. And he's held a key meeting, not just with the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, but also with the three services chiefs to prepare the government's response on Operation Sindoor. Sources say the government does intend to respond very aggressively, outlining the full scope of Operation Sindoor, which the government insists is still on. Now, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Defence Minister Rajnath Singh. So that's the trio that will lead the government's charge. Prime Minister Narendra Modi is expected to intervene to highlight the government's strong track record on national security. Meanwhile, the big names to present the opposition side are Priyanka Gandhi Vadra, Gaurav Gogoi, K.C. Venugopal, Akhilesh Yadav and Supriya Sule. Sources suggest that Rahul Gandhi will take the floor. In fact, Rahul Gandhi may lead the opposition charge. Rahul Gandhi has repeatedly hit out at the Narendra Modi government's foreign policy, accusing it of failing to secure global support when it came to Operation Sindoor. He's also questioned US President Donald Trump's repeated claims of mediation, of ensuring a ceasefire between India and Pakistan and using trade as a weapon. Prime Minister Narendra Modi has defended Operation Sindoor, calling it a complete success, 100% success. Initially, the government targeted terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, and also for the first time ever in Muridke and in Bahawalpur, the headquarters of terror of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. But when Pakistan targeted or attempted to target Indian military facilities, India went and hit back and hard, targeting 11 Pakistani air bases, including multiple air bases in Pakistan's Punjab province. Again, for the first time ever, the fiercest strikes mounted by Indian Air Force. Now, this also was a show of India's indigenous military capabilities. That is something that the government is all set to highlight. साथियों, आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं, ये युद्ध नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। खरगे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं, और कल से हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा। इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। मगर मुझे लगता है डिबेट देखने के बाद, संसद में चर्चा देखने के बाद देश की जनता को स्पष्ट रूप से सत्य का आभास हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश की 3 सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर अगर संसद के दोनों से सदन पर यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर डिस्कशन होता है तो देश की जनता को इसके बारे में पता चलेगा, और हमें हमारी आर्मी की वीरता पर, उनके वैलोर पर हमें गर्व भी करना चाहिए, और हमें इसका जोर शोर से पूरे देश के जनता को बताना भी चाहिए।